Well, was the second application for the grant of bail. The first application was dismissed as withdrawn. My lords will find that order on page 15, 1-5. Yes. Now, after the withdrawal on the 12th of August 24, my lords, the prosecutrix has been examined. I can't say that she's turned hostile, and nor will I request my lords to appreciate the evidence. In fact, I would just take my lords into the 164 statement. Now, the prosecution story was that the prosecutrix went missing on the 2nd of April 24 and was later on recovered on the 16th of April 2024. She is at that time aged about 17 years, 10 months, and 2 days. And admittedly, for half of the case of the prosecution, she has her mobile phone on her. And of course, she's traveled long and she's traveled far. We'll get that once we appreciate her 164 statements. May I read them for my lords? She says, उसकी शायद तब असलम उनके घर आता जाता रहता था, तभी से मेरी उससे जान पहचान हुई और हम दोनों ने एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दिया और हम दोनों की बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद मैंने असलम से बातचीत करना बंद कर दी, पर वह मुझे ज़बरदस्ती कॉल करने लगा। दिनांक 1/4/2024 को मैं अपने घर पर थी। रात में लगभग 1 बजे असलम ने मुझे फ़ोन करके घर के बाहर आने कहा। मैं घर के बाहर गई, तब वहाँ पर असलम मोटरसाइकिल में अपने एक दोस्त जफ़र के साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही उन लोगों के पास गई, उन दोनों ने जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा लिया और मुझे सिवनी लेकर आ गए। सिवनी में वे लोग मुझे नगझर के पास लेकर आए। इसके बाद जफर मोटरसाइकिल लेकर चला गया और असलम मुझे जबरदस्ती ट्रक में बिठाकर कटनी लेकर चला गया। कटनी में पहुंचकर असलम मुझे अपने साथ रेलवे स्टेशन लेकर गया और कटनी से मुझे सागर लेकर चला गया। सागर से ललितपुर लेकर गया। जब हम ललितपुर पहुंचे, तब असलम के पास रुपए खत्म हो गए, तो उसने मेरा फोन 2000 रुपए में बेच दिया। इसके बाद हम लोग ट्रक में बैठकर नरसिंहपुर पहुंचे। नरसिंहपुर में असलम की बुआ रहती हैं। हम उनके घर पर चले गए। असलम ने मुझे अपनी बुआ, दैट्स द बुआज नेम, के घर पर रखा और असलम वहीं मजदूरी करने लगा। असलम रोज रात में मजदूरी करके घर वापस आता था और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। असलम अपनी बुआ को कहता था कि हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों पति पत्नी हैं। हम लोग असलम की बुआ के घर पर लगभग 9 से 10 दिन रहे। इसके बाद असलम मुझे अपने मामा जी के घर, जो कि बेलखेड़ा में रहते हैं, वहां लेकर गया। वहां हम एक दिन रहे। इसके बाद असलम के मामा जी के दोस्त हमें बेलखेड़ा के अंदर के ग्राम कुल्हड़ा में छोड़ दिया। वहां पर then the police comes and apprehends him. Now, my lords, what I wish to show, my lords, is annexure A3. If my lords will just have page 22. एक 22, my lords. हाँ, वो तो फोटोग्राफ। My lords will see that there are two, and we are not just relying on these photographs. Now, just for the purpose of these photographs, if my lords will see page 19, 19, यस। and the last line of that page, that is वो paragraph number 12 का जो last line है सर। मैं again, I'm not asking appreciation, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो photographs हैं, ये हमने prosecutrix को दिखाए हैं। Now these are admitted documents. The prosecutrix has said कि हाँ, this is her, मंगलसूत्र वगैरह पहने हुए दिख रही हैं। हम ये नहीं कहते कि इनकी शादी हो गई थी या कुछ हो गई थी। Walby says that these are 17-year-old girl and this is about a 20-year-old boy. It's a love affair, my lords. Unfortunately, it's taken a wrong turn. Apart from that, although the girl belongs to a different religion and the boy belongs to a different religion, but apart from that, there is no Freedom of Religion Act or anything which has been there. It's not that type of matter. It's a simple love affair, my lords. Under the circumstances, she's been examined. There remains no chance of her tampering. Consent is, some elements are prima facie visible. And the charge sheet has been filed. We've been in custody since the 16th of April 24. my lords. Let's say first of all, the case is belonging to POCTO Act. It is below 18 years. As per the Dakhil Kharij and DNA is positive. That's why I opposed the bail application. Because the victim is a minor. डेट ऑफ बर्थ क्या? 31/5/2006 31/5/2006. डेट ऑफ इंसिडेंट क्या? 2/4/2024 1 और 2 की मिडनाइट है लॉर्डशिप। 2/4/2024 2/4 4/24 चौथे माह 24 तारीख 1 और 2 की मिडनाइट। 17 साल 10 माह 2 दिन से डीएनए पॉजिटिव। डीएनए पॉजिटिव। स्टेटमेंट अगेंस्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात ही नहीं सर, ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये तो रिलेशनशिप की बात है। नहीं, स्टेटमेंट कोर्ट पे स्टेटमेंट अगेंस्ट है सर। अगेंस्ट है कि फेवर में, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि साक्ष्य का मूल्यांकन तो हम कर नहीं सकते। हमारा सिर्फ इतना तर्क है कि उसके स्टेटमेंट्स हो गए हैं। अगर एक 20 साल का लड़का अभी बाहर आ जाता है तो कितना ही साक्ष्य को परिवर्तित कर लें, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। डायरी दे दे। Heinous offense है below
हीनियस तो नहीं है सर, दीज आर लव अफेयर्स, वो स्टैट्यूटरी रेप की कैटेगरी है. If my lords would not be inclined, I would not deserve an order on merits. Deeply obliged.